आपने दोनों ने योगिनी मैम का बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो आप बेसिक से एडवांस स्टार्ट करना प्रेफर करोगे या हम एक इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करें? इंटरमीडिएट लेवल से कर सकते हैं। ओके, यू नो बेसिक ऑफ एक्सेल? Kushi and Dipanshu, you both are agree for this? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So I want to ask you some question about basic Excel. You answer me, and if you are able to answer, then we will move towards our medium module. Okay. So first, you know how to open Excel. Please be interactive, guys. Kushi and Dipanshu. I ask, Sorry, ma'am. you know how to open Excel? Yeah. Okay. So as you know already, so this is our welcome screen of, sorry, I will share my screen. Give me a second. My screen is visible, guys. Yes, sir. So this is the welcome screen of Excel. Here, Excel offer us many templates. For example, welcome to Excel program tutorials, and here our recent work files. So we right now we need one blank workbook. So this is the first screen of Excel where we work. Okay. And I give you one data set here. Just a minute, guys. I will show you one data set. Data is visible on my screen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I think you both are able to see two yellow sections are there in my screen in my data set, right? Yes. So how I remove? You know basic Excel, so tell me how I remove blank column as well as blank row. Please let me know. Don't take too much time, guys. If you know, tell me yes. We Or don't. Yes, sir. so how you say you know basic Excel if you are not able to remove blank column, blank row only. So how you are able to know basic Excel? So now I know कि आपको कितना आता है. So I start according to me. Okay. Okay. So this is the PDF and presentation for our today's module. Our today's module is the intro of Excel and basic overview of Excel. I think you are able to know this is ribbon tab and this is the sections, font, alignment, numbers. I think you are know, right? Yes. So this is the presentation for our today's module, intro of Excel. So in our today's class, we cover in first of all, introduction to Excel, why we use Excel, what is Excel, benefits of Excel, quick access toolbar, and keyboard shortcuts. And at the end, guys, आपको क्या करना है कि आप जो भी न्यू लर्न करोगे आज की क्लास से, आपको लास्ट में मुझे फीडबैक देना है उसका कि आज आपने नया क्या सीखा. ओके. सो हर चीज आपको अगर नई लगी तो आपको नोट करनी है, या आपको हेल्पफुल लगी तो आपको मुझे वो लास्ट में बताना होगा. तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है क्लास में. ओके. सो ये 4 मॉड्यूल हैं आज की क्लास के लिए. सबसे पहले
एक्सेल सबको आता है, बट इन दिस बैच वी लर्न बेसिक टू एडवांस एक्सेल. Everyone know how we add values in Excel, how we subtract values in Excel, how we entry in Excel. But in advanced Excel, we see how we automate our data, how we make dynamic our data. Okay. So first of all, everyone, sorry, not everyone, you both are, I think you have one question, ki what is Excel and why we learn Excel? So Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows user to organize, manipulate and analyze data. What is organize, manipulate and analyze data? Organize मतलब हमारा Excel के अंदर जो रो डाटा होता है वो भी किसके फॉर्म में होता है? रो और कॉलम, उसका स्ट्रक्चर होता है. मैनिपुलेट, उसको हम बोलते हैं कि हमारा डाटा क्या है? ऑर्गेनाइज डाटा. नाउ व्हाट इज मैनिपुलेट? मैनिपुलेट जब हम अपने डाटा के अंदर कोई चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लाइंट का जो डाटा हमें मिलता है उसमें जैसे मैंने आपको डमी डाटा दिखाया, उसके अंदर कुछ रोज ब्लैंक है, सम कॉलम्स आर ब्लैंक. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम उस डाटा सेट के अंदर करते हैं उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन. तो वो हम कहाँ प्रेफर करते हैं करना? एक्सेल में इंस्टेड ऑफ अदर एनालाइज टूल. सेकंड, एनालाइज. एनालाइज जब हमें डाटा मिलता है तो उसके अंदर हमें अगर वो डाटा फॉर एग्जांपल 10 लाख रो का डाटा है तो हमें उसमें चेक करना होगा कि बाय मिस्टेक कोई डेट का रॉन्ग एंट्री नहीं है, या फिर टैक्स डाटा में नंबर डाटा एंट्री नहीं है, या फिर उसमें कोई नल या ब्लैंक वैल्यूज तो नहीं है. तो ये चीजें हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं. आपने आज का इंडस्ट्री में सुना होगा डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड डाटा साइंस. ये तीन प्रोफाइल ऐसी हैं जो ट्रेंड कर रही हैं इन टूडेज इंडस्ट्री. सबसे ज्यादा कहाँ पर भीड़ मिलेगी आपको आज के टाइम पे? इन तीन कोर्सेज में, डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट एंड डाटा साइंस. तो जो हम एडवांस एक्सेल इस बैच के अंदर कवर करेंगे वो हमारा, अब आपका जो एक्सेल क्या है? बेस है इन तीनों प्रोफाइल के लिए. अगर आपको एक्सेल ही नहीं आता तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल. So first of all, you have need to learn Excel. After it, you move towards next tool. For example, SQL, Power BI, Tableau, Qlik. There are many tools for this profile. तो एनालाइज हम उसको बोलते हैं जहां हम डाटा को चेक करते हैं. इट इज वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड्स सच एज बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन, रिसर्च. आई थिंक ये चीज मुझे आपको बताने की नीड ही नहीं है. आप खुद देख सकते हैं, अगर कोई सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको भी एक्सेल पे काम करने की नीड होती है अपने डाटा को अप टू डेट रखने के लिए. आजकल स्कूल में भी सारा जो स्टूडेंट्स का डाटा क्या होता है? एक्सेल सीट के अंदर होता है. उनका असाइनमेंट, उनका यूटी, सारा डाटा आपको कहाँ मिलेगा? एक्सेल सीट के अंदर. और आपके बैंक, मेडिकल, आप जिस भी फील्ड में देखोगे आपको एक्सेल का यूज वहां पर देखने को मिलेगा. यहाँ पर जो रिसर्च फॉर टास्क रेंजिंग फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस. एक्सेल के अंदर हम 1+2 भी करते हैं. 1+2 इज इक्वल टू 3, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन. और हम क्या करते हैं? लार्ज डाटा पे भी काम करते हैं, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस. So that is about intro of Excel. कि why we use Excel? What is the use of Excel? Now benefits of Excel कि अब हमें यूज तो पता है कि Excel का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बट अब तक हमें बेनिफिट्स नहीं पता कि why we learn Excel. और भी तो टूल है जिसपे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल शीट है, या आप अपने डाटाबेस अगर आपको पता है तो आप डाटाबेस के अंदर कर सकते हैं. देयर आर मेनी अदर टूल्स, बट what is the benefits of Excel? तो बेस्ट वे टू स्टोर डाटा. इजीली हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. परफॉर्म कैलकुलेशन किसी भी टाइप का, आपका स्टैटिस्टिकल, आपका अर्थमेटिक, लॉजिकल, हर प्रकार का आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जितने भी आपके मीडियम लेवल या स्टार्टअप कंपनीज होते हैं या एमएनसी कंपनीज में भी अगर आपका ह्यूज डाटा नहीं है तो वो आपको डाटा एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल प्रोवाइड कराएंगे? एक्सेल. एक्सेल में आपको एक लिमिटेशन ये मिलती है
कि वहां पर आप लिमिटेड डाटा एनालाइज कर सकते हैं फॉर आई थिंक 1 मिलियन शायद, कि उसका कुछ एक रेंज है कि आप उस रेंज का ही डाटा वहां पर स्टोर कर सकते हैं वन टाइम पर। तो इसीलिए अगर आपका जो डाटा है वो कम है तो आप कहाँ एनालाइज करेंगे, एक्सेल में। बट इफ यू आर वर्किंग इन वेरी लार्ज कंपनी, फॉर एग्जांपल उबर, ओला, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको दूसरे टूल्स के साथ मूव करना होगा। बट startup companies and intermediate level companies always prefer Excel for data analysis. Understand, guys? Yes, ma'am. रिपोर्ट्स को इजीली हम प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, चेंजेस किए, इजीली उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको वेलकम पेज पे दिखाया कि एक्सेल आपको सो मैनी फ्री टेम्पलेट्स ऑफर करता है टू यूज। सेकंड, यू कैन कोड टू ऑटोमेट। अभी मैंने आपको बताया कि एडवांस एक्सेल के अंदर हम क्या सीखेंगे, हाउ वी मेक डायनामिक डाटा। तो डायनेमिक डाटा कैसे होगा, जब वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट होगा। तो ये सारी चीजें हम अपने एडवांस एक्सेल वर्जन में कवर करेंगे। ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा, बेसिकली फर्स्ट अप्रोच तो एक्सेल का यूज करने के लिए यही होती है कि हमें अपने डाटा को क्लीन करना होता है। विजुअलाइजेशन के लिए तो जो स्मॉल कंपनी होती है वो एक्सेल का यूज ही करती हैं अपनी विजुअलाइजेशन के लिए। बट मैनी कंपनीज यूज पावर बीआई इन टूडेज टाइम। नाउ I think you are able to know what is the benefits of Excel. So, my next question is, what is quick access toolbar in Excel? I think you must be heard about quick access toolbar because you already joined Yogini ma'am class. So, can you please confirm me you know about quick access toolbar? मैम एक अलग तरह का सेक्शन टाइप का होता है जो लाइक ऊपर रहता है, जिसमें बहुत सारा टूल्स रहता है, शॉर्टकट्स टाइप का। Yes. So, you are right, Dipanshu. But why we use quick access toolbar? Can you know? Can you please tell me? टू सेव टाइम, बहुत सारे जो See, रेगुलर फंक्शंस लाइक जो रहता है उसको ऐड कर सकते हैं जो बार बार यूज yes. हो। Yes. So what is quick access toolbar? I throw some lights here. Customization. Quick access toolbar क्या होता है, आपका कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपना ओन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूजर कैन कस्टमाइज द क्विक एक्सेस toolbar by adding frequently used commands, including those not found on the ribbon. This allows for quick access to commands without navigating through multiple tabs. अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाती हूँ। This is my quick access toolbar in left upper corner. What is this? This is my quick access toolbar. See, customize quick access toolbar. I think you are able to see. यस So अभी मेरा जो क्विक एक्सेस टूलबार है उसके अंदर आपको क्या है, ओपन फाइल ऐड है, फिल्टर ऐड है, कॉपी कमांड ऐड है और सेव कमांड ऐड है। तो अगर अब मुझे अपने डाटा पे मुझे पता है कि ये 4 से 5 कमांड मेरे क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर अवेलेबल हैं, बट अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने डाटा सेट पे फिल्टर अप्लाई करना है। अगर मैं उसको मैनुअली करती हूँ तो मुझे चेक करना होगा कि अगर मैं न्यू यूजर हूँ तो मुझे चेक करना होगा सबसे पहले कि फिल्टर मुझे कहाँ मिलेगा। मुझे ऐसे मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कि फिल्टर कहाँ पर अवेलेबल है। फिर आपको होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको विजिबल है राइट साइड शॉर्ट एंड फिल्टर। आप यहाँ क्लिक करोगे, फिर आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, उससे पहले आप अपना कॉलम सिलेक्ट करोगे कि आपको किस डाटा पे फिल्टर अप्लाई करना है, राइट। सो मैंने टोटल कितने टैब यूज किए, सबसे पहले तो मैंने सारे रिबन टैब के अंदर चेक किया कि वेयर इज माई फिल्टर टैब। फिर मुझे पता चला कि मेरा फिल्टर होम टैब के अंदर है, होम टैब पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे 1 मिनट एडिटिंग टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर आइकन विजिबल हुआ, फिर मैंने उस पर क्लिक किया। उसके अंदर मुझे क्या मिला, फिल्टर सेक्शन। और उससे पहले भी मुझे क्या करना है, अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है कि मुझे अपना फिल्टर अप्लाई कहाँ करना है। तो मैंने कितने हाउ मेनी टैब्स
I use in this process? I think 5 to 7 times I use. Yes. But if I use quick access toolbar filter command, अभी यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक पॉपअप मैसेज विजिबल हुआ। वो किस लिए हुआ? क्योंकि अभी हमारे डाटा में कुछ एरर है जिसको हमें रिजोल्व करना है। बट अगर मेरे डाटा के अंदर ये एरर्स, ये कॉलम्स, ये इशू ना होते तो मुझे सिंपली क्या करना है, फिल्टर आइकन पे क्लिक करना है और क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है। तो मैंने कितना कमांड यूज किया? 1। सिंपली मैंने टैब ही तो किया फिल्टर टैब पे। तो इसलिए हमारा क्या होता है, क्विक एक्सेस टूलबार इजी टू यूज होता है। इसमें हम वो कमांड्स ऐड करते हैं। अब आपको पता है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज करने वाली शॉर्टकट्स है, राइट? तो मैंने इनको क्या किया, अपने क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऐड कर दिया कि मुझे मल्टीपल टाइम्स क्या नहीं करना पड़ेगा, कि उन कमांड्स को प्रेस नहीं करना होगा या फिर मुझे उनके लिए मैनुअली सिलेक्शंस नहीं करना होगा। मुझे सिर्फ क्या प्रेस करना है, फिल्टर अपनी क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर जो कमांड मुझे रन करनी है उस पे क्लिक करना है और क्या होगा, वो ऑटो अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 कमांड चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस। बट आपको चाहिए कि आपको हर 1 घंटे में एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, न्यू फाइल कमांड चाहिए। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मैनुअली ऐड कर सकते हैं। सो हाउ यू विल ऐड? We see the quick access toolbar includes a set of commonly used commands such as save, undo, redo, and print. Users can easily add or remove commands according to their preference. Adding commands. To add a command to the quick access toolbar, users can right click on any command in the ribbon and select add to quick access toolbar. क्या बताया है आपको, क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर कहीं पर भी क्या करना है, राइट क्लिक करना है। दे कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन और अल्टर, या तो आप राइट क्लिक कीजिए अपने क्विक एक्सेस टूलबार सेक्शन में कहीं पर भी, या अल्टरनेट क्या है उसका, click on the drop down arrow at the end of the quick access toolbar and choose more commands to select from a wider range of options. Let's see what happens. हमें बताया कि या तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये आ रहा है, या फिर हमें दूसरा क्या बताया कि हम अपने जो क्विक एक्सेस टूलबार के एंड में ड्रॉप डाउन आइकन है उस पर क्लिक करें। सिंपली मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कमांड्स के आगे चेक का निशान है। तो ये कौन सी कमांड है जो मेरे क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऑलरेडी ऐड है। इफ आई वांट टू रिमूव, सो आई विल एबल टू रिमूव इट, but I want more commands. So here you have option for more commands. अब आप देखिए आपको सारा कमांड्स यहाँ पे विजिबल है। आपको बॉर्डर, आपको टेबल ज्यादा बनाना पड़ता है, उसकी फॉर्मेटिंग में आपको बॉर्डर्स अप्लाई करने पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली, तो आप बॉर्डर्स कैलकुलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉपी मेरा ऑलरेडी ऐड है। कट, अगर आपको कट करना पड़ता है, आपके पास क्लाइंट से डाटा आता है, वो आपको डिवाइड करना होता है तो आप कट सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट शीट, कॉलम, सीट, रो। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है, रो है, मुझे इनको मैनुअली, मेरे पास ऐसा क्या होता है कि डाटा आता रहता है फ्रिक्वेंटली डे टू डे, तो मुझे क्या है, मुझे ये चाहिए अपने में, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ऐड कर लूंगी। तो आपके पास यहाँ पे फ्रीडम है, आप जितना चाहें उतना कमांड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिफ्रेश करना है, डाटा को रीडू करना है, पेस्ट करना है, न्यू फाइल करना है, तो आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आपको राइट साइड में कमांड्स विजिबल हैं, ये सारी 6 कमांड्स क्या है, मेरे क्विक एक्सेस टूलबार में ऑलरेडी एडेड है। बट आई वांट वन न्यू कमांड, सो आई चूज न्यू फाइल। When you click on any command, here you have, first of all you need to select, then add. अब आपका क्या है, आपको न्यू फाइल कहाँ भी विजिबल है, आपकी राइट टेबल के अंदर भी विजिबल है। फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके। अब आप देखिए, अब आपको एक नया कमांड आपके क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड हो गया है, कंट्रोल प्लस एन, राइट?
अब जब भी आप इस पे प्रेस करोगे तो ये आपको क्या देगा, एक नया वर्कबुक देगा. So that is, I think, easy for you all, right? Yes, ma'am. So that's Yes. about quick access toolbar. Now this is very important concepts of advanced Excel, shortcuts. Give me a second. So so before our next class, I will share you this data and whatever things I'm going to teach you, implement in your Excel file as well as, okay? कि जो भी आपको क्लास में कराया जाएगा, आपको साथ के साथ क्या करना है, अपने सिस्टम, अपने डाटा सेट में भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है. जब तक आप उन चीजों को देख रहे हैं, ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दीपांशु और खुशी, जब तक आप इन चीजों को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे आ रही हैं, बट जब आप उन चीजों को प्रैक्टिकली यूज में ट्राई करोगे तो आपको वहां पर बहुत सारे एरर इशू मिलेंगे कि आप उनको रिजोल्व करने में भी अनेबल होगे. ओके, तो आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपको साथ के साथ रिजोल्व कर लेनी है. आप साथ के साथ कीजिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो हम सेम टाइम पर आपका स्क्रीन शेयर करा के उस एरर को रिजोल्व करेंगे. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू. Yes, ma'am. So everyone tell that if you are Excel expert, then no need to touch or use mouse. सब ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है एक्सेल पे, तो आपको आपको लगेगा एक टाइम के लिए कि मैम को माउस यूज करने की नीड ही नहीं है. सबका यही सोच होता है, एक मेंटलिटी हो चुकी है कि जिसको एक्सेल आता है वो माउस यूज बहुत कम करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें शॉर्टकट्स पता होना चाहिए कीबोर्ड की, तभी तो हम कीबोर्ड पे काम कर पाएंगे, माउस को छोड़ पाएंगे, कीबोर्ड पे काम कर पाएंगे. So definitely we are going to start with shortcuts. Even I'm not saying that you need to remember all shortcuts. You just try and find what are the shortcuts in day-to-day life you will use. कि आपको अपनी वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको खुद देखना होगा कि मैं किन शॉर्टकट्स को अपने फ्रीक्वेंटली डेज में यूज कर रहा हूँ. तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. आपको किसी को, अब मैं ये नहीं बोलती कि 100 शॉर्टकट है तो मुझे 100 की 100 शॉर्टकट्स याद है, नहीं याद है. जिसका यूज होता है उस टाइम पर वो माइंड में होती है, बस उसका यूज कर लेते हैं. अब आप मुझे, मैं आपको ऐसे तो स्टार्ट करने लग जाऊं कंट्रोल प्लस ए के यूज क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी का क्या होता है, तो ऐसे आप लर्न नहीं कर पाओगे. तो हम देखेंगे हमें जिन जिन शॉर्टकट्स का हमारे डाटा सेट के अंदर यूज लगेगा, उन शॉर्टकट्स को हम साथ साथ क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, navigation shortcuts. So what do you understand by the name of navigation, Khushi and Dipanshu? I think you are able to relate. What is navigation? To find something that you're looking for, like a particular cell data or something. Yes, find something in some direction, right? Navigation means direction. So see, I am on this cell A4. How I know I am on which cell? Here in right side you have one option, sorry, in left side you have one option, name box. आप जिस भी आप सेल में एक्टिव होगे, आपका उसका सेल नेम आपको कहाँ विजिबल होगा, आपके नेम बॉक्स के अंदर. तो इसको हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स. जो आपका सबसे ऊपर है वो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार. फिर उसके नीचे आपको मिलता है रिबन टैब. रिबन टैब के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, नेम बॉक्स. बट नेम बॉक्स के साइड में, राइट साइड में आपको एक लाइन विजिबल है. आपको वहां पर ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार. जो भी आप कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म करोगे वो आपको इस फॉर्मूला बार के अंदर विजिबल होगी. ओके, एंड ये आपके कॉलम नेम्स हैं ए बी सी डी, और ये आपकी रोज हैं 1 2 3. अब आप जब आपको किसी सेल को आइडेंटिफाई करना होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई इन दिस सेल, so how you identify, what is the name of this cell? D9. How D9?
D is your column and 9th is your row. So combination of your column and row name is your cell identification. Understand? First column name, then row name, combination of both is your cell identification. Okay? So now I am on this cell number A4. Now if I want to move right side, so what I do, I simply press, अब नेविगेशन करना है, मुझे मूव करना है राइट साइड, तो मैं क्या, उसके लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल एरो, राइट एरो। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट अपने रो आईडी से ऑर्डर आईडी में मूव किया, जो कि मेरे राइट साइड अवेलेबल है। तो क्या यूज किया मैंने, कंट्रोल प्लस राइट एरो। आप इसको नोटपैड में नोट कर सकते हैं हर शॉर्टकट को। अगर आपको मूव करना है डाटा के अंदर, सिर्फ ओनली मूव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट मूव। तो जब भी आपको डाटा सेट के अंदर मूव करना है, तो आपको जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है, right now I want to move in left side, so control left arrow. Now I want to move in downward direction, control down arrow. अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने राइट एरो प्रेस किया तो मुझे ये सिर्फ ऑर्डर आईडी में लेके आया, मैंने जब फिर लेफ्ट एरो प्रेस किया तो मुझे ये रो आईडी में लेके आया, बट जब मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया तो ये मुझे 11th रो में क्यों लेके आया, बिकॉज आप यहाँ पर देखिए ऑर्डर आईडी के पास आपके पास क्या है, ब्लैंक कॉलम। तो आपके ब्लैंक कॉलम में जब भी आप शॉर्टकट्स आप परफॉर्म करते हैं तो वो ब्लैंक कॉलम को इग्नोर करती हैं, तो वो उसके आगे मूव नहीं कर रही है। ऐसे ही इस केस में जब हमने डाउन एरो प्रेस किया तो उसने क्या किया, आपकी जो 12th रो है वो क्या है, ब्लैंक रो है, तो आपका वो कहाँ पे स्टॉप हो गया, आपकी 11th रो में ही क्या हो गया, स्टॉप हो गया आपकी प्रोसेस। बट आपको तो डाउनवर्ड मूव में बिल्कुल नीचे जाना था जहां आपका डाटा सेट खत्म हो रहा है। तो हाउ आई विल डू इट, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एरो से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, बट हमारे पास क्या है, ब्लैंक कॉलम और ब्लैंक रो के कारण हम अपना कंप्लीट डाटा सेट एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हमने अब तक फेस की, दूसरा कि अब मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गया, अब मुझे मूव नहीं करना, मुझे सिलेक्शन करना है। When you want to select, then you need to press control plus shift plus right arrow. अब आपका क्या हुआ, ये यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मूव नहीं किया एक सेल से दूसरे सेल में, उसने क्या किया, उस सेल में रहते हुए दूसरे सेल को भी क्या किया, सिलेक्ट किया, राइट। तो ये आपने क्या कर लिया, एक सिलेक्शन बना लिया। अब आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिख रहा है कि आपके सिलेक्शन में क्या है, 1 रो इंटू 2 कॉलम, 2 कॉलम है, रो आईडी एंड ऑर्डर आईडी, और रो कितनी है, 1 रो है, 11th रो। तो आपके नेम बॉक्स में आपका सारा क्या होगा, विजिबल होगा। तो ये ऐसे हम जब हमें मूव करना है तो हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस नेविगेशन की, बट जब हमें डाटा के अंदर सिलेक्शन करना है तब हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नेविगेशन की अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लेफ्ट में मूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, और आपको राइट साइड मूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ऐसा ही अपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। Now I don't know what is the number represent here. If I move little bit now I don't know what is the number represent here because I am not able to see header here. अब आपको पता है कि आपका बी कॉलम में कौन सा डाटा अवेलेबल है, जी कॉलम में कौन सा, आर यू एबल टू नो? नहीं पता हमको, क्योंकि हमारा जो कॉलम हेडर है वो हमें विजिबल नहीं है। तो इसका एक क्या प्रॉब्लम है, जब भी आपके पास डाटा सेट होता है तो आपको कैलकुलेशन तो एट द एंड ही करना होता है। अगर आपको मैं एक कॉलम, जी कॉलम में फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी, नंबर वैल्यूज, और मैं आपको बोलूं कि आपको इन सब का सम करना है, तो आपको सम करने के लिए क्या चाहिए, अब आपके पास 10 कॉलम्स है, एक में आपको सम करना है, एक में मल्टीप्लाई करना है, एक में डिवीजन करना है, ऐसे ही आपको 10
है कि परफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो अब आपको नहीं पता, अगर आप थोड़ा नीचे मूव करेंगे उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे सम किस कॉलम के लिए करना है, मल्टीप्लीकेशन किस वैल्यू के लिए करना है, डिवीजन कहाँ करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले, आप जब भी आप किसी डाटा सेट पे अगर काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपके कॉलम हेडर है, फोर्थ रो में क्या है, हमारे कॉलम हेडर है, राइट, तो आपको इनको फ्रीज कर देना है। फ्रीज मतलब वो मूव नहीं होंगे। So I think under view tab you have one option, freeze pane। तो आपको जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का मतलब क्या होगा, जो आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, कॉलम्स एंड रो हेडर, वो दोनों ही अवेलेबल रहेंगे जब भी आप मूव कर रहे हैं। दूसरा फ्रीज टॉप रो, कि आप चाहते हैं मुझे सिर्फ कॉलम हेडर फिक्स चाहिए, बाकी मेरा डाटा मूव करना चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपने कॉलम हेडर फ्रीज चाहिए कि वो मुझे परमानेंट अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो। फिर आपके पास फ्रीज फर्स्ट कॉलम, कि अगर कई बार क्या होता है, आपको अभी हमारा डाटा क्या है, वर्टिकल है, तो हमारे पास हेडर कहाँ पर है, रो में है। अगर मेरे पास डाटा हॉरिजॉन्टल है तो मेरे जो हेडर होंगे वो क्या होंगे, रो में अवेलेबल होंगे, राइट। Yes, अगर मेरे, तो ऐसे होगा, रो वाइज होगा, मेरे पास मेरे हेडर कहाँ होंगे, रो में अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, तीनों ऑप्शन है कि हमें पूरा स्क्रीन को फ्रीज करना है, या सिर्फ सिंगल रो को, या सिर्फ फर्स्ट कॉलम को। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वर्टिकल डाटा है, तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा कॉलम हेडर है वो फ्रीज रहे, और वो कहाँ पर है, फोर्थ रो के अंदर है। हमारे सारे हेडर फोर्थ रो में है, तो मैं क्या करूंगी, फ्रीज टॉप रो। तो अभी जो मेरी, अब आप देखो, जो मेरी फर्स्ट रो है वो विजिबल है, मुझे मैं कितना भी मूव करूं तो मेरी फर्स्ट रो क्या है, विजिबल है। बट मेरा कॉलम हेडर कहाँ है, फोर्थ रो में, बिकॉज जो मेरी स्टार्टिंग की 3 रो है वो तो ब्लैंक है। तो मुझे तो इसको फ्रीज करना होगा, इसको मुझे फर्स्ट रो बनाना होगा। इसको फर्स्ट रो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन 3 ब्लैंक रो को डिलीट करना होगा, राइट। तो yes, ma'am. आप, तो आपको रो डिलीट करने के लिए क्या करना है, जब अगर आपको कॉलम, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आके क्लिक करेंगे, आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट, सो वी टोटली गो विथ शॉर्टकट्स। तो अभी मैं, अब मुझे क्या करना है, अब मेरा टास्क है, मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो आप क्या कीजिए, आप सिंपली किसी भी सेल में उसको, जिस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है वहां पर जाइए, और आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस। मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ, मेरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब अगर, अब मैं, एक टास्क तो आपने क्लियर किया कि अब आपने विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स क्या किया, अपना कॉलम सिलेक्ट कर लिया। बट नाउ आई वांट कि आपको इस कॉलम को डिलीट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। मैनुअली तो हम सबको पता है कि हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट। डिलीट हो गया। बट आई वांट थ्रो शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट से हम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, कंट्रोल माइनस, क्या करना है आपको, कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस इज नॉट ओनली फॉर कॉलम डिलीटिंग, कॉलम माइनस आपका, सॉरी, कंट्रोल माइनस आपका किसके लिए वर्क करता है, जनरली आपका जो भी, अगर आपने सिलेक्शन क्रिएट किया है, सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद अगर आप कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा, वो सिलेक्शन डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस इज फॉर डिलीशन, ओके। तो आपका क्या हुआ, हमने क्या प्रेस किया था, कॉलम। आप ये सारे शॉर्टकट्स आपको नोट कर लेंगे हैं, जब आप इनको धीरे धीरे, अभी आप इनको नोट करके यूज में कीजिए, फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अब आपने कंट्रोल प्लस स्पेस किया किसके लिए, कॉलम सिलेक्शन के लिए, और कंट्रोल माइनस से आपने क्या कर दिया, उनको डिलीट कर दिया। नाउ आई वांट
कंट्रोल, अब मुझे क्या करना है, इस रो को भी डिलीट करना है। अब रो को सिलेक्ट करना है तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब डिलीट करना है तो डिलीट कर दूंगी, रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। बट फिर से वही क्वेश्चन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स राइट नाउ। तो रो का सिलेक्शन करना है, तो रो के सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी सेल में मूव कीजिए उस रो के अंदर, और आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस की। कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस की, और रो सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस की। और फिर से क्या करना है, सिलेक्शन अगर आपको डिलीट करना है, अब मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर लिया, अब मुझे डिलीट करना है, तो दीपांशु मुझे किस कमांड का यूज करना है, आवाज अटक गई मैम, क्या बोली? किस कमांड का यूज करना है अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये डिलीट करना है इस रो को, मेरे सिलेक्शन को, तो मैंने आपको कंट्रोल बताया माइनस। कि यस, अगर आपको किसी भी सिलेक्शन को डिलीट करना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस माइनस। और सिलेक्शन करना है रो सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस की, और कॉलम सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस की, हमेशा याद रखना। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने अपने येलो सेक्शंस को डिलीट कर दिया। हमने देख लिया कि ब्लैंक कॉलम को कैसे डिलीट करना है, ब्लैंक रो को। हमने दोनों अप्रोच देखे कि विद द हेल्प ऑफ माउस हमने कैसे यूज किया। हमने क्या किया, आपने सिंपली सी कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और हमारे पास डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल था। ऐसे ही हमने रो में थर्ड पे ऐसे क्लिक किया और राइट क्लिक, फिर से डिलीट का ऑप्शन। दूसरा, हमने शॉर्टकट से भी देखा कि हमने कैसे शॉर्टकट की हेल्प से अपना सिलेक्शन क्रिएट किया, और शॉर्टकट की ही हेल्प से उनको डिलीट भी किया, राइट। बट मेरे पास तो अब भी ब्लैंक रो है। अब तक हमने सिर्फ क्या देखा, हमने अपने येलो सेक्शन को डिलीट करने के उससे हमने क्या सीखा कि हाउ वी रिमूव ब्लैंक कॉलम्स एंड ब्लैक रोज मैनुअली। ये चीजें हमने क्या की, मैनुअली की। बट अब आप यहाँ पे देखिए, मेरी 11th रो भी ब्लैंक है, मेरी 28th रो भी ब्लैंक है, और मेरी अभी नीचे ये 61st रो भी क्या है, ब्लैंक है। अगर मेरे पास अभी हमारे पास कितना डाटा है, 9995 रोज है हमारे पास। बट हो सकता है ये हमारा क्या है, डमी डाटा सेट है। जब हम फ्यूचर में रियल डाटा सेट पे वर्क करेंगे तो वो 1 लाख भी डाटा हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकता है। तो वहां पर क्या आप मैनुअली स्क्रॉल करके चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे आपकी ब्लैंक रो, या फिर आपके पास कॉलम नंबर, अगर 200 नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं आपके डाटा सेट के अंदर, तो आप ऐसे मैनुअली स्क्रॉल तो नहीं करोगे आई थिंक उस डाटा सेट को चेक करने के लिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपको जल्दी ही क्या वहां से क्या मिल जाएगा, रिजाइन लेटर। यस, तो आपको हार्ड वर्क ना करके क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो वो कैसे करना है, हम इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट होनी चाहिए कि हम मैन ऑटोमेटिकली क्या कर दें, एक कमांड से ही सारा डाटा क्लीन कर दे। तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी इज वेरी वेरी पावरफुल शॉर्टकट इन योर एक्सेल। whenever you press control G, one pop-up is come on your screen visible. Yes, ma'am. Press on this special dialog box, and we are looking for what, right now we are looking for blank. अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे डाटा में बहुत सारी ब्लैंक वैल्यूज है, राइट। तो वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक, सो क्लिक ऑन ब्लैंक एंड हिट ऑन ओके। अब क्या है, प्रोसेस रनिंग है। अब आपको देखते हैं कि ये हमें क्या देगा आउटपुट में। अब आपका ये आउटपुट ने क्या किया, देखो इसने ऑटोमेटिकली, मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट नहीं किया, सेकंड रो को सिलेक्ट नहीं किया, 11th रो को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने किसी रो को सिलेक्ट नहीं किया, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली सारी ब्लैंक रोज को, अगर आपके पास कॉलम्स भी होते तो उन सबको क्या कर लेता, सिलेक्ट कर लेता। सारा सिलेक्ट कर लिया। अब आपको डिलीट करना है एक ही कमांड से, तो डिलीट, अब हमने सिलेक्शन बना लिया, डिलीट के लिए विच कमांड वी यूज, कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस। अब हमने कंट्रोल माइनस किया तो हमारे पास फिर से एक पॉपअप है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो आप सेल्स डिलीट कर रहे हो, रोज को डिलीट कर रहे हो, तो जो उसके बाद का डाटा है वो कहाँ शिफ्ट करें, उसके लेफ्ट में। अगर मेरे पास जी कॉलम ब्लैंक होता तो मैं उस, और मेरे एच में डाटा होता, जी मेरा ब्लैंक है, एच में डाटा है, तो मैं उनको कहाँ शिफ्ट कर देती, जी कॉलम में, राइट।
तो अभी तो मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेरे पास ब्लैंक कॉलम ही नहीं है। शिफ्ट सेल अप, अगर मैं, अब मेरे पास ये 2 रोज ब्लैंक है, अब मैं इसको डिलीट करते अपने उसके नेक्स्ट डाटा को क्या कर देती हूँ, शिफ्ट अप कर देती हूँ, तो वो डाटा मेरा कहाँ जाएगा, फर्स्ट रो में। तो मुझे इसी का रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट सेल्स अप एंड क्लिक ऑन ओके। सो नाउ माय हेडर इज इन माय फर्स्ट रो, राइट। अब हमने क्या, अब तक हमने क्या सीखा, हमने क्विक एक्सेस टूलबार का कस्टमाइजेशन देख लिया, उसका यूज देख लिया, बेनिफिट्स देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल देख लिया, कुछ शॉर्टकट्स हमने नेविगेशन की शॉर्टकट्स देख ली कि सिलेक्शन कैसे करना है, मूव कैसे करना है, और अब हमने नई चीज क्या सीखी कि हाउ वी रिमूव ब्लैंक डाटा, ब्लैंक रो, ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक सेल एज वेल एज। अब हमें हमारा डाटा तो क्लीन हो गया, ब्लैंक नहीं है, बट मुझे फिर से वो ये कि अब मैं नीचे मूव करूं तो क्या हो, मेरा फर्स्ट रो क्या हो, फ्रीज हो जाए। तो जैसा कि हमने पहले से ही अपनी फर्स्ट रो को फ्रीज किया था, तो अब क्या है, मेरे हेडर मुझे विजिबल है, मैं कितना भी नीचे स्क्रॉल करूं मेरे हेडर मुझे विजिबल है। इनको क्या कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। अब आपको इजीली आप देख पा रहे हैं आपके हेडर्स, आप कितना भी मूव करो आपके हेडर्स विजिबल हैं। तो हमने देख लिया कि हमने फ्रीज पेन कैसे किया, फ्रीज को रो को कैसे फ्रीज करना है। और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हमने देखा कि हमने ब्लैंक कॉलम और ब्लैंक रो को डिलीट कैसे किया, बट नाउ माय रिक्वायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट। आई वांट वन न्यू कॉलम इन माय डाटा, कि मुझे ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच का जो जितना भी हमने हमने टाइम लिया अपने कस्टमर से उसके ऑर्डर को शिप करने के लिए, मुझे उन डेज का भी डाटा चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए। तो हाउ आई विल ऐड, फॉर ऐड वी हैव कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सॉरी, अब तक हमने क्या किया, डिलीटिंग देखा, अब क्या देखेंगे, एडिंग। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आइकन। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कहां पर ऐड करना है, शिफ्ट सेल्स राइट, कि अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो जहां पर भी आपने बी कॉलम में आके क्या किया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया है, तो हम उसको राइट में शिफ्ट कर दें उसके डाटा को, या डाउन में कर दें, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट सेल्स राइट। अब हमने क्या किया था, सिर्फ सेल का सिलेक्शन करके उसको परफॉर्म किया था अपनी शॉर्टकट को, तो वो मेरा सेल का डाटा कहाँ शिफ्ट हो गया, उसके राइट में। बट आई वॉन्ट कॉलम, तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस, कॉलम सिलेक्ट हो गया, नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा कॉलम ऐड हो गया, राइट। अब आपको सेल, अब आपको कॉलम ऐड कर लिया, अब आपको एक रो भी चाहिए कि आपकी एक ऑर्डर आईडी बाय मिस्टेक जब आप मैनुअल एंट्री आपका जूनियर या आपके इंटर्न ने जब किया तो उससे एक आईडी मिस हो गई, तो मुझे अब वो ऐड करना होगा मैनुअली। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, ब्लैंक रो चाहिए। तो ब्लैंक रो के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा कि मुझे 5 और 6 जो मेरी रो आईडी है, 5th और 6th, इसके बीच में एक आईडी चाहिए। तो इसके बीच में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका सिलेक्शन करना है मुझे, तो रो के सिलेक्शन के लिए क्या प्रेस करना है आपको खुशी, Shift plus space. शिफ्ट प्लस स्पेस राइट। अब आपको ऐड करना है, एडिंग के लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आइकन। तो आपका 5th और 6th के बीच में क्या हो गया, एक रो अवेलेबल हो गया। So till now, if you have any doubt, Kushi and Dipansu, please let me know. No doubts. Ma'am. Okay, Kushi, you have any doubt? No, ma'am. So, Okay, so ये चीजें हमने किया सिर्फ लर्निंग के लिए, बट आई डोंट वांट दिस रो, सो आई अगेन कंट्रोल जेड फॉर अनडू, कि आपने जब अब तक जो भी किया आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली उसको एक स्टेप बैक जाने के लिए आप क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस
जेड। अब हमने नेविगेशन की देख लिया, हमने डिलीशन देख लिया, एडिंग देख लिया कि कैसे सेल ऐड करना है। अगर आपको सिंपली सेल ऐड करना है तो आप सेल को सिलेक्ट कीजिए और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको सेल अवेलेबल हो जाएगा। आप जिस भी चीज का सिलेक्शन करेंगे, रो का सिलेक्शन करेंगे और फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपको रो अवेलेबल होगा। आप कॉलम का सिलेक्शन करेंगे तो आपको कॉलम, ब्लैंक कॉलम अवेलेबल होगा। आप सेल का सिलेक्शन करेंगे तो आपको सेल अवेलेबल होगा। अब हमने थोड़ी देर पहले एक क्विक एक्सेस टूल बार का कंसेप्ट देखा कि वो कैसे यूजफुल था हमारे लिए, कि हमारे पास, हमारे लिए इजी टू यूज था। हमको क्या करना पड़ा था, बहुत सारे टैब को एक्सप्लोर ना करके हमें सिर्फ सिंगल कमांड से क्या मिल रहा था, अपना आउटपुट मिल रहा था। बट हियर वी हैव समथिंग डिफरेंट। whenever you press alt key, what happen, what is the change in my screen when I click alt key? So what is visible now? शॉर्टकट्स Short. जो कीज यूज कर सकते हैं उसको एक्सेस यस, तो ये किस लिए बता रही हूँ मैं आपको, कि हम हर टाइम में भी आप भूल जाओ कि कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड नहीं है और आपको शॉर्टकट्स याद नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ऑल्ट की। क्या याद, जब भी आप, अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हो तो आपको वो ऑटोमेटिकली क्या देता है, फाइल के लिए ऑल्ट की क्या है, सॉरी शॉर्टकट क्या है, एफ। एच के लिए, होम के लिए क्या है एच, इंसर्ट के लिए क्या है एन। और आप एक बात ऊपर देखिए, इनके लिए आपको क्या मिल रहा है, टेक्स्ट करैक्टर मिल रहे हैं, एफ एच एन, अल्फाबेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। बट आपके क्विक एक्सेस टूल बार में जो कमांड्स हैं उनके लिए आपको क्या शॉर्टकट्स मिल रही है, 1 2 3 4, आपको नंबर मिल रहे हैं, क्या है, डिजिट्स में आपका अवेलेबल है। तो 6 नंबर पे क्या है आपका ओपन है, 7 पे आपका क्या है, नाउ इफ आई प्रेस 7, so what happen, न्यू वर्कबुक इज देयर। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्टकट्स को याद कर सकते हैं ओल्ड की हेल्प से। अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ, ओल्ड की प्रेस कर रही हूँ। अब मुझे कौन सा रिबन टैब में मेरे क्या है, होम के ऑप्शंस अवेलेबल है। होम के अंदर क्या है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। बट आई वांट टू नो व्हाट इज देयर इन डाटा टैब। तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, ए। तो आपके पास अब क्या है, ए का सारा टैब ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपको इसमें से परफॉर्म करना, रिमूव डुप्लीकेट्स। इफ यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम योर डाटा, सो यू हैव ओनली नीड टू प्रेस एम। क्या प्रेस करना है आपको, एम। तो आपको ऐसे क्या मिलेंगे, हर आपके एक स्पेसिफिक टूल टैब के लिए क्या मिलेगा, एक शॉर्टकट्स अवेलेबल होगा। ओके, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट्स को याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ ओल्ड की देख याद रखना है, उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके साथ आप मूव करते चले जाओगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। In our today's class, we cover intro, benefits, quick access toolbar. What is quick access toolbar? How we customize it with our own requirement, and we also cover some shortcuts like navigations, filtering, deletion, adding. So remaining part we will cover in our Tuesday class. Okay, Khushi and Dipanshu. यस मैम। So now the time for feedback. What is your feedback for today's class? You are able to understand what I told you in this class? यस मैम, एवरीथिंग वाज Okay, so क्या करेंगे, स्लोली स्लोली मूव करेंगे। मुझे मोदी सर ने स्पेशली बोला है कि आपको डीप में चीजें करानी है, कि आपको एक्सेल का इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको मेरे बैच में शिफ्ट किया गया है योगिनी मैम के बैच से। तो योगिनी मैम का बैच क्या था, वो सिर्फ 1 मंथ का बैच था। उनको क्या था, 1 मंथ में अपना सिलेबस कवर करना था। बट इन अवर दिस बैच वी विल मूव स्लोली स्लोली, वी विल सी इन एंड आउट ऑफ एक्सेल, जो आपको इंडस्ट्री में हेल्प करेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना, रिमेनिंग पार्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रो था।
अगर आपका कोई डाउट नहीं है so I will stop my screen now and then bye Khushi and Dipanshu. Thank you, ma'am. Okay, Thank thanks. you, ma'am. Most welcome Khushi and Dipanshu.